Hello students, this is the continuation of chapter 2, Journey from Primitive Man to Settled Life. Open page number 8. Discovery of fire and wheel and their uses. Ruins of ashes found in the caves of the primitive man in Kurnool in South India indicate that they were familiar with fire. As per historians, approximately 11,000 years ago, humans started using fire. So 11,000 साल पहले प्रिमिटिव मैन ने फायर यानी कि आग की खोज की थी और सबूत कैसे मिले हैं कि एशिस जो जले हुए लकड़ियाँ थी वो उसकी राख मिली, तो उससे पता चलता है कि उन्होंने फायर की खोज की। और वो ये कहाँ से मिला है? रुइंस ऑफ एशिस, साउथ इन कर्नल। यूज़ ऑफ फायर had revolutionized their life because with the help of it they could cook the meat and eat, get light and protect themselves from wild animals. Other than fire, wheel also revolutionized their life. They learned to make wheel from tree trunk and thick wood. So यूज़ ऑफ फायर के उपयोग से प्रिमिटिव मैन की लाइफ में एक बदलाव आया, चेंज आया। वो फायर की मदद से खाना पकाने लगा, उनको लाइट मिला, प्रकाश मिला, और जो जंगली जानवर थे, वाइल्ड एनिमल्स, उससे वह अपनी रक्षा भी करने लगा। फायर के अलावा व्हील की खोज उसने की और वो प्रिमिटिव मैन की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। व्हील यानी पेंडा जो व्हीकल्स में लगता है, और वो व्हील वो किससे बनाने लगा? वो पेड़ का जो ट्रंक है उससे उसने व्हील बनाया। चेंजिंग एनवायरनमेंट। Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world. Due to increase in temperature, vegetation and grass field started growing in many areas of the world. As a result, number of grass-eating animals, herbivorous like deer, sheep, goat, etc. increased. Primitive man certainly got benefits of it. They started studying these animals' behavior and thus their mental development started. So आज से लगभग 12,000 साल पहले पूरी दुनिया में एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा चेंज आया। और किसकी वजह से? टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा था। कई जगह पे वेजिटेशन और ग्रास, घास उगने लगा था। उनके कारण जो प्राणी, एनिमल्स, घास खाने वाले थे, जिसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, वो बढ़ गए। और वो कौन से एनिमल्स थे? डियर, शीप, गोट एक्सेट्रा। उसका फ़ायदा प्रिमिटिव मैन को बहुत हुआ। उन लोगों ने ये एनिमल्स के बारे में सोचना शुरू किया कि ये जो एनिमल्स है, डियर, शीप, गोट, वो उनके क्या काम आ सकते हैं। They came in contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains due to climate change. By using stones, women, men and children collected grains. Because of this curious instinct, slowly agriculture started in India. People started using stones to grow grains. So जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेजिटेशन थे, जैसे वीट, बार्ली, वो पैदा हुए और उनके कांटेक्ट में आ गए और पहचानने लगे कि कौन सी चीज़ें खाने लायक है और कौन सी चीज़ें वो नहीं खा सकते। धीरे धीरे
पूरी फैमिली यानी बच्चे, वुमन सब ग्रेन्स कलेक्ट करने लगे और उसको स्टोर करने लगे और इस तरह धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। वो पत्थर का इस्तेमाल करने लगा अनाज उगाने में। They started growing grains near the bank of the rivers and constructed their houses made up of mud, thatch, and other material in the nearby areas. As a result of it, their nomadic life came to an end and started a settled life. तो धीरे धीरे वो ग्रेन्स अनाज उगाने के साथ साथ अपना घर कच्चा पक्का बनाने लगा और उसका घर किसका बना था? मिट्टी से, गाय के गोबर से, घास से, और वो बनाने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि वो प्रिमिटिव मैन जो भटकता जीवन जीता था वो अब बंद हो गया और वो एक जगह पे सेटल हो गया, स्थिर होके रहने लगा। The first companion or friend of his settled life was a dog. Besides, he was also familiar with sheep, goat, cow, buffalo, pig, etc. Gradually, they started adjusting with them too. These animals protected them from wild animals. Thus, they associated with animal husbandry also along with farming. However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. So सबसे पहला जो उसका फ्रेंड था, दोस्त था, वो एक एनिमल था और वो था डॉग। उसके अलावा शीप, गोट, काव, बफेलो, पिग एक्सेट्रा भी उनके साथ रहते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने ये सब एनिमल्स के साथ रहना एडजस्ट कर लिया। ये एनिमल्स उनकी जंगली प्राणियों से रक्षा करते थे, जो वाइल्ड एनिमल्स थे उससे रक्षा करते थे, क्योंकि जब वो वाइल्ड एनिमल्स शिकार के आते थे तो प्रिमिटिव मैन बचता था और ये जो एनिमल्स थे यानी कि जो काव, गोट, बफेलो, उसको मार के वो खाते थे। बाद में उन्होंने ये एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट किया और उनको पालने लगे। बाद में वो उनको स्टडी किया और प्रिमिटिव मैन को लगा कि ये शीप, गोट, गाव, उन सबको हमें वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो उन लोगों ने इन सब को प्रोटेक्ट किया और अपने साथ उन लोगों को पालने लगे, जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सब फार्मिंग के साथ काम हुआ। तो खेतीबाड़ी के साथ वो एनिमल्स को पालने का काम भी करने लगे। जो रिसर्चर्स हैं वो अब तक ढूंढ रहे हैं कि उन्होंने एनिमल्स में से दूध निकालना कब शुरू किया। तो आज तक ये पता नहीं चला। Now page number 9. Settled life, food, shelter, clothing. Early life and pastoral activity transformed primitive man's life into settled life. We know that agricultural land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. It needs water and crops have to be harvested when grains are ready, and this process lead to the beginning of settled life in India. So उनकी जो प्रिमिटिव मैन की जो अर्ली लाइफ थी और पेस्टोरियल लाइफ यानी देहाती लाइफ रिलेटेड टू विलेज, गांव की एक्टिविटी थी, उनके कारण वो एक सेटल लाइफ, बसा हुआ जीवन उसने जीना चालू किया। हमको पता है कि खेती लायक जगह है उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स उगने में थोड़ा टाइम लगता है। जो क्रॉप्स उगाता है उसको पानी की ज़रूरत होती है।
जब वो तैयार होते हैं तो उसके बाद वो फसल को काटना पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस के लिए प्रिमिटिव मैन को वो जगह पे ही रुकना पड़ा और ये इसकी सेटल लाइफ का ये एक कारण बन गया। He also started making earthen pots for the storage of grains. As the wandering life came to an end, there was a widespread change in their food habits, clothes, and shelter. Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruits found near their settlement. ग्रेन्स उगाने के लिए अब उसको कहाँ पे रखे, वो उसके लिए एक मिट्टी का घड़ा पॉट बनाया और उसमें स्टोर किया। बहुत सारा ग्रेन्स उगा तो उसको स्टोर करने के लिए एक पॉट बनाया। घूमने फिरने का बंद हो गया, जो वॉन्डरिंग लाइफ थी, नोमैडिक लाइफ थी, अब वो बंद हो चुकी थी और वो एक जगह पर ही रहने लगा। उसके कारण खाना पीना, कपड़े और घर में बहुत बदलाव आया। पहले वो व्हीट, बार्ली, मीट खाता था, लेकिन अब वो फिश, फ्रूट्स खाने लगा क्योंकि वो उन्हें अपने आसपास ही मिल जाते थे। He lived in houses made up of mud, thatch and other such materials. He did agriculture. He made farming implements of stone which included spade, chisel and sickle. तो सेटल लाइफ के बाद उसने घर बनाया जिसको हम झोपड़ा भी कहते हैं। फिर एग्रीकल्चर फार्मिंग करना शुरू कर दिया। पत्थर के उपयोग से उसने साधन वेपन्स बनाना शुरू किया। और कौन से वेपन? तो स्पेड यानी कुदाल जो खुदाई के लिए काम होता है, चीज़ल यानी छन्नी, और सिकल यानी दराती, दाटेडू जो घास काटने में काम आता है। वो सब वेपन्स उसने बनाए। द फॉलोइंग टेबल शोज अस द प्लेसेस इन इंडिया वेयर ग्रेन्स, शेल्टर, वेपन्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड। अब ये जो नीचे टेबल दिया गया है वो उससे हमें पता चलता है कि ग्रेन्स, सेटलमेंट, वेपन्स, एनिमल्स जो है वो कौन सी जगह पे हैं। तो वीट, बार्ली, शीप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स वो मेहरगढ़ में हैं जहाँ पे आज पाकिस्तान है। राइस, बोन्स ऑफ एनिमल्स, कोलदिवा, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। राइस, शीप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, महागढ़, दैट इज़ ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश। ह्यूमन सेटलमेंट, राइनो, लखनगंज, गुजरात। वीट, लेंटिल, डॉग्स, पीट हाउसेस, बर्जहोम एंड गुफकरल इन कश्मीर। बफेलो, बुल इम्प्लीमेंट्स इन चिरांद in Bihar. We get information about their human settlement and cattle rearing from places like Barjhom, Gufkral, Hurangi, Mehergarh, Langhans and Bhimbetka, which were discovered by our archaeologists. From places such as Mehergarh and Inamgaon, we get information about their houses and farming. They used to grow grains like barley and बाजरा। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इम्पोर्टेंट साइट्स को खोजा है और ये सब साइट्स जो है, जो बुर्जहोम, गुफरल, हुरंगी जो है, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है। उनमें से जो मेहरगढ़ और इनामगाम है उनके घर और फार्मिंग की इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है कि उस ज़माने में मेहरगढ़ में वो लोग क्या उगाते थे, तो बाजरा और बार्ली। Sharp stone implements have been found from places like Mehergarh and Inamgaon. This might have been used for farming.
तो पत्थर के औजार मिले, शार्प स्टोन, तीक्ष्ण औजार मिले थे जिसका वो लोग फार्मिंग में उपयोग करते थे। Mehergarh may be considered to be the oldest village of ancient India. You see Mehergarh in the map. Farming of barley and wheat started from here. They reared sheep and goat. फिर जो मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ जो है वो पुराने भारत का सबसे ओल्डेस्ट पुराना गांव है और माना जाता है कि वीट और बार्ली की खेती यहाँ से ही शुरू हुई थी। वो लोग शीप और गोट को भी पालते थे। दे डिड फार्मिंग। नाउ पेज नंबर 10. They did farming and stored grains. Bones of animals have also been found here. They lived in rectangular houses. Small barns have also been found in these houses. तो उन्होंने फार्मिंग करके ग्रेन्स को भी स्टोर किया। उनके घर का आकार रेक्टेंगुलर लंबचौरस थे और वहाँ पे एनिमल्स की बोन्स हड्डियाँ भी मिली थी और एनिमल्स को रखने के लिए भी स्मॉल हाउसेस वहाँ पे पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस found in Mehergarh, they honored the dead body by burying them. Many such evidences have been found here. Evidence has been found at one place that goat was also buried along with man. This suggests their belief that there is life after death also. तो एविडेंस यानी सबूत जो मिले हैं उनके हिसाब से मरे हुए लोगों की बॉडी वो ज़मीन में गाड़ते थे, दफनाते थे और वो इंसान के साथ एक गोट बकरी को भी दफनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद भी लाइफ ज़िंदगी होती है तो वो उनके साथ होगी और उनको स्वर्ग में भी खाना मिल जाएगा। In the same way, a place named Inamgaon has been found in Maharashtra, from where remains of dead bodies of children have been found. They lived in round-shaped houses, reared cattle, and did farming of bajra and barley. ऊपर जो बात की है वो मेहरगढ़ की थी और अब हम बात करेंगे इनाम गांव की जो महाराष्ट्र में है, जहां से बच्चों की डेड बॉडीज़ के सबूत मिले हैं। यहाँ पे जो घर थे उनका जो आकार था वो राउंड था, गोल था और वो लोग भी कैटल पालते थे, उनका पालन पोषण करते थे और बाजरा और बार्ली की खेती होती थी। So students, here we have completed chapter 2. For homework, you have to write the answers of objective, that is MCQ, blanks, true or false, and match the column in your workbook. For rest of the answers, I will send you the pics and you have to copy it in your workbook.